Okay, good. Now we are online. So, good afternoon, all of you. The session of today, the content of today. First of all, I will give a small revision for both that correlation and regression. We'll be quickly going through the properties of regression lines and regression coefficient, and then we will be switching over towards the practice session for both these topics. So. Let me choose my screen first of all, and then yes, there it is. And let me pick my pen. Yes, good. So as I said that the coefficient of correlation, that means R, that means correlation topic, and uh, regression line. Both these topics will be included in the mid semester 2 examination, and uh, the confusion in the student mind, the biggest confusion might be about the formula, which formula we are supposed to use. That depends on the situation. That depends on the question, the kind of data they will provide. If they are providing a series for both x and y, then we may use any of the formula. But if they are providing some of the summations only related to both the series x and y, then we have to use some of the specific formula for the R, even for the coefficient of correlation and the regression coefficients. Is it? So let's quickly go through all this. The coefficient of correlation R is having a simple formula, that is covariance of xy divided by standard deviation of x, standard deviation of y. This is the Carl Pearson's formula for the coefficient of correlation. We know that the range of R is always -1 to +1. Is it? Depending on both that, we can say that perfect positive correlation, perfect negative correlation, we are good with that. Okay. And this is the basic formula for the R, that R is a coefficient of correlation. Now, that we had simplified this particular in two different ways. One of the formula was summation x minus x bar into y minus y bar divided by under root of divided by under root of summation x minus x bar the square, and similar term for the y, summation y minus y bar the square. This is one of the formula. Now, when we can use this formula, you can use this formula in any of the cases. In any of the cases. If any of the cases, I mean to say that if we are having a series for x and y in the data, if they are providing all the observations in the data, then we may use this formula in any of the case, whether that that series is having a small numbers or big number. We're not concerned about that. We will be not considering that. We will be not taking that in the consideration कि यहाँ पे x वाले सीरीज में छोटे नंबर्स है या बहुत बड़े हैं या तो फिर thousands में है या तो फिर hundreds में है. Yes, we can deal with this formula if we are having both the series with us. But what if instead of providing this kind of series, if they are providing some of the summations only, instead of giving all the series, if they are giving sigma x, what is the sigma x for the data, what is the summation of y, what is the summation of x square, what is the summation of y square, and if they provide summation xy. If this is the data we are having, कि भाई कोई एक बाइवेरिएट डेटा है जिसमें दो वेरिएबल x और y, उसके लिए सिग्मा x है कुछ 100 है, सिग्मा y 120 है, सिग्मा x square is around 476, sigma y square, I'm just picking the number randomly. Okay, sigma y square is around 690 and sigma xy is around 572, like that. If we are having this data only, this kind of data, then do you think we may proceed with this formula? No, we can't, because here we will be in need of all that information, x minus x bar the whole square, y minus y bar the whole square, x minus x bar into y minus y bar, which will be not
which we will not able to get from this particular information. So if we are having such summations with us in the data, then instead of using this particular formula for R, we will be using the other one. दूसरी formula R की क्या थी, कोई बताएगा मुझे? Who will let me know the other formula of the R, which we had already mentioned in our lab book? So I'm waiting for your answer. This is one of the simplified version of actual formula, covariance of xy divided by standard deviation of x, standard deviation of y. अब इसको कुछ और तरीके से अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो R की दूसरी भी फॉर्मूला निकलती है, वो क्या है वो मैं पूछ रहा हूँ जल्दी से. चलिए बताइए, मानसी, भारती, मंथन, यश हमारा. आर की एक और फॉर्मूला हमने मेंशन करके रखी है, आपकी लैब बुक में भी है, आपने लिख के भी लिखी है. मैंने वो पीपीटी भी आपके साथ शेयर की है. एंड यू गाइस आर सेइंग कि आपको कोई डाउट नहीं इसमें, यू गाइस आर गुड विद दिस, सो श्योरली यू विल बी knowing the formula for the R. Summation xy minus summation x into summation y. Summation x y, once again, sorry, summation x y. फिर से summation x y minus summation x into summation y. Summation x summation y divided by n whole divided by under root of summation x square minus summation x the whole square divided by n into under root. Similar term with the y. Summation y square minus summation y the whole square divided by n. Is it? So thank you very much. This is what I was looking for. Both these formula are literally same, but both these are the simplified version of this only. But in some of the cases we will be dealing with this, in some of the cases we will be dealing with this. But ये जो फॉर्मूला है ना लास्ट वाली जो हमने अभी लिखी, ये ऐसी फॉर्मूला है वो आप कभी भी यूज करें. आपके पास सीरीज है नहीं है, आपके पास समेशन दिया हुआ है सारे वो क्वांटिटी का, तो भी आप ये कर सकते हैं. इफ यू आर हैविंग अ काइंड ऑफ सीरीज फॉर बोथ एक्स एंड वाई, तो भी आप ये कर सकते हैं. बट ये कब करेंगे? अगर हमारे पास वो सीरीज है तभी हम इसी के लिए जा सकते हैं, वरना हम इस फॉर्मूला के लिए नहीं जा सकते. ठीक है, सो दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड वंस फाइन कि कब कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है. उसके अलावा एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिखी थी हमने, अगर आपको याद हो, मैंने पीपीटी में दे के रखी थी. एंड बिफोर डीलिंग विद दैट फॉर्मूला, I had revealed one of the property related to coefficient of correlation. That coefficient of correlation is free from, is independent from change of origin and change of scale. Change of origin and change of scale. तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला बनाई थी जो कि इसकी कुछ सिमिलर टाइप थी. That was R equals to summation dx dy minus summation of dx summation dy divided by n, all divided by under root of summation dx the square minus summation dx the whole square divided by n, and similar term with the y. अब देखिए आप ये दोनों फॉर्मूला ऑब्जर्व कीजिए, one of this formula and another this. Observe all this. Both these are ditto same. यहाँ पे x y लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं dx dy लिख रहा हूँ, और कुछ नहीं. ठीक है, ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या है? After changing, if I'm wishing to change the origin of my data, अगर मैं मेरे डेटा का ओरिजिन चेंज कर रहा हूँ तो नया x और y निकलेगा. ओरिजिन क्यों चेंज करेंगे? अगर x और y की वैल्यू बहुत ही बड़ी है, if x is in the hundreds or in the thousands, then if I wish to deal with this particular formula, तो बहुत ही बड़ा नंबर आएगा जब मैं करूंगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, जब मैं करूंगा सिग्मा समीशन ऑफ एक्स वाई, वो डिजिट बहुत ही बढ़ जाएंगे, बहुत ही बड़ा नंबर आएगा. सो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे थे, अगर आपको याद हो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, वी वर चेंजिंग द ओरिजिन ऑफ द डेटा. अब ओरिजिन कैसे चेंज करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. आफ्टर चेंजिंग द ओरिजिन, जो नया एक्स और वाई निकले उसको हम बोल रहे हैं डी एक्स और डी वाई. और पहले इस फॉर्मूला में जो एक्स और वाई के साथ काम कर रहे थे वही काम हम डी एक्स और डी वाई के साथ करेंगे, और फॉर्मूला ये निकलेगी, ये हम यूज करेंगे, इसको इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. बट at this stage I would like to throw one of the question towards all of you, that what we mean by change of origin of the data.
Suppose x is like that, x and y. Suppose I'm giving you one of the data set. Sorry, let me give you one of the data set. Suppose x and y is having a छोटा सा data देता हूँ 125, 134, 143 and 150. Suppose these are the data related to x. Respective data of y is 252, 260, 280 and 292. Now suppose this is the data I'm having related to two different variables x and y, and if you wish to identify the coefficient of correlation r, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि इसके लिए r आइडेंटिफाई कीजिए, तो आप पहले तो डिसाइड कीजिए कि इसमें से कौन कौन सी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा सेट, जिसमें कि 4 ही डेटा मैंने दिए हुए हैं, उसके लिए कौन कौन सी फॉर्मूला जा सकती है। ये पहली भी हो सकती है, इज इट श्योरली हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। मैंने बोल के रखा है कि जब भी पहली ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, सीरीज है, तो फर्स्ट फॉर्मूला कभी भी आप कर सकते हैं। तो हम कर ही सकते हैं, पक्की बात है। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका समेशन निकालेंगे, फिर एक्स बार निकालेंगे, फिर वाई बार फाइंड करना होगा। then we will go for the column x minus x bar, then we will be finding y minus y bar, और then after summation x minus x bar into y minus y bar, और इन दोनों का स्क्वायर। पर हो तो सकता है, इज इट ना, चाहे बड़े नंबर हो पर हो पाएगा, श्योरली वी कैन डू दैट, श्योरली। सो इस डेटा के लिए ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, इवन दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो एप्लीकेबल, इससे भी हो सकता है, श्योर हो सकता है। सिमिलरली if I wish to change the scale of this particular data, अगर मैं इस डेटा का स्केल चेंज कर रहा हूं, तो ये फॉर्मूला भी हो सकती है। अब स्केल चेंज करने का मतलब क्या है, माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट वी मीन बाय चेंजिंग अ स्केल ऑफ अ डेटा। चलिए कौन बताएगा, मैं एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम रिद्धि। रिद्धि, आर यू देयर? रिद्धि शाह। Yes, sir. Yes, sir. But my question is that what do you mean by changing an origin of data? पता है आपको, नहीं पता है, हाँ या ना बोल दीजिए। No, sir. नहीं पता, ध्यान से सुनना, जो भी आंसर आए ना उसको। हाँ, विधि पारिक, unmute yourself. Yes, sir. Okay, what we mean by changing origin of a data set? Sir, maybe the change in the values. How? चल, इस x के लिए हमको ओरिजिन चेंज करना है, तू करेगी। ओरिजिन कहीं पे भी लेके जा, तुझे जो पसंद हो वहां पे लेके जा, आई डोंट केयर। पर इसका ओरिजिन अगर चेंज करना है तो उसका मतलब क्या रहता है, क्या करते हैं हम एक्चुअली उसके साथ? सर वो नहीं पता। ठीक है, अच्छी बात है। विभूषा आयुध है, राबड़िया, विभूषा राबड़िया। Yes, sir. यस बेटा, सेम क्वेश्चन टुवर्ड्स यू। पता है, नहीं पता है, हाँ या ना बोल दे। आपने क्वेश्चन सुना कि नहीं सुना? No, sir. What we mean by change of origin of a data? Change of origin for data. कोई बोले कि भाई हम डेटा का ओरिजिन चेंज करें, उसका मतलब क्या होता है? नहीं पता ना, चल म्यूट कर दे अपने आप को। हाँ, जेके को पकड़ूंगा मैं। आदित्य, unmute yourself, Aditya. Look, we guys are observing since last 2 or 3 weeks that the sincerity of your class, जो रिदम में आप लोग ने स्टार्ट किया था, that rhythm is missing now. I don't know why. Is there anything lagging from our side? हमारी साइड से कुछ lagging आ रहा है, या फिर हम लोग ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे, या फिर आपका इंटरेस्ट चला जा रहा है,
या फिर ऑनलाइन से तंग आ गए हो, क्या हो नहीं पता, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी डोंट नो। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। आदित्य आयुध है, Yes, आदित्य, sir. यस, व्हाट वी मीन बाय चेंजिंग ओरिजिन ऑफ ए डेटा। चल इसका ओरिजिन चेंज करवा, एक्स का। Sir, maybe the graph will shift either right side or left side. हाँ सच बात है। तो ओरिजिन अगर चेंज करना है आपको तो क्या करना है, या तो कोई फिक्स नंबर ऐड करना है या तो कोई फिक्स नंबर सबट्रैक्ट करना है। अब तू सोच, अगर ये सारा जो नंबर है 125, 134, 143, 150, अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा, कोई बड़ी वैल्यू या तो कोई छोटी वैल्यू ऐड करूंगा, तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। पर अगर मैं इसमें इस सारे में से 120 सबट्रैक्ट कर दूं, if I'm gonna subtract x minus 120, इस सारे ऑब्जर्वेशन में से मैं 120 सबट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर ऐसा मान ले तो ये क्या हो जाएगा, 125 minus 120, it will be 5, this will be 14, this will be 23, and this will be 30. Is it? Yes or no? Yes, sir. इसको मैं बोलूंगा मेरा नया वेरिएबल, दैट इज dx, नथिंग एल्स। अब तू सोच इसमें क्या करने से तुझे बेनिफिट हो सकता है। इसको छोटा बनाना है तो कोई एक कांस्टेंट नंबर पकड़। मैंने जैसे x के लिए पकड़ा था 120, इट इज नॉट फिक्स, ऑब्जर्व दैट। 120 करना ऐसा फिक्स नहीं है, अगर आप चाहे तो 129 कर सकते, अगर आप चाहे तो 150 कर सकते, अगर आप चाहे तो सिर्फ 2 कर सकते, अगर आप चाहे तो 100 कर सकते, दैट इज अप टू यू, इज इट? सो सिमिलरली dy, अगर y में से मैं चलिए 260 को पकड़ के करता हूं, if I'm subtracting 260 from each and every observation, then this will be minus 8, cos 258 minus 260 minus 8, 260 minus 260 will be 0, 280 minus 260 will be 20, and this will be 32, is it? Yes or no? Agree with me, Aditya? Yes, sir. समझ में? Good. अब मेरी बात क्या है, अब मैं क्या बोल रहा था कब से, as I said that coefficient of correlation, that means this R, is free from change of its origin. It's free from change of origin. तो उसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इन दोनों एक्चुअल डेटा को लेके R की वैल्यू फाइंड करूं, मुझे नहीं पता क्या है R की वैल्यू, पर सपोज इन दोनों को x और y ये कंसिडर करके अगर मैं r फाइंड कर रहा हूं और वो आ रहा है 0.64, सपोज दिस इज जस्ट अ रैंडम नंबर, ओके, आई एम जस्ट ब्लफिंग। सो अगर इन दोनों के लिए r की वैल्यू 0.64 आ रही है ना, तो इन दोनों के लिए भी 0.64 ही आएगी, r will not gonna change. Once again it will be 0.64 only. So this is what the meaning of coefficient, that coefficient of correlation is independent from change of origin. डेटा का ओरिजिन चेंज करने से r की वैल्यू डिफर नहीं करेगी, is it? So when I am changing the origin of a data or I am changing a scale of a data, जैसे ये origin की बात की, हम कुछ प्लस और माइनस कर सकते हैं। अभी हमने हर किसी में से 120, x में से 120 सबट्रैक्ट किया, y में से 260 सबट्रैक्ट किया। अगर आप चाहे तो इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। अगर ऐड करूंगा तो ये नंबर बढ़ेंगे तो इट्स ओके, हमारे पास कैलसी होगा, हम वो सारी कैलकुलेशन कर पाएंगे। पर अगर मैं ऐड भी कर रहा हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी बड़े नंबर आएंगे उसके बीच में मैं r फाइंड करूं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वही सेम ही आएगा, दैट विल बी 0.64. दैट इज व्हाट I want to say. So adding or subtracting a constant number from both the data means we are changing the origin. Similarly, if we wish to change the scale of the data, then we are supposed to divide or multiply by fixed number. अब इन सारे numbers को मैं 10 से divide कर दूं, then it will be 12.5, this will be 13.4, this will be 14.3, this will be 15.0, is it? और इसको भी 10 से divide कर दूं, sorry, and after dividing all the numbers by 10, जो भी मेरे पास नया डेटा मिल रहा जो भी नया डेटा सेट है उसके लिए अगर r फाइंड किया जाए ना तो वो भी वही आएगा। So this is what the meaning of shifting origin or changing a scale. यार ये जो r है ना, it is totally independent from both that change, origin वाला change और scale का change अगर करे तो भी r में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So this formula is for that particular
right? When I'm denoting dx dy, that means instead of x and y, जो भी एक्चुअल डेटा था उसको मैंने मैनिपुलेट किया हुआ है, उसको मैंने चेंज किया हुआ है, और जो नया x और y आ रहा है उसको मैं dx dy बोल रहा हूं. वही तो है ये. देखिए यहाँ पे x था, यहाँ पे dx है, यहाँ पे y था, यहाँ पे dy. जस्ट गिव मी 1 मिनट. So this is what the story related to coefficient of correlation. Is it? Now, if two variables are correlated with each other, then we may go for the regression. Using that tool, using the regression line, we may estimate for some of the missing values, is it? Or we may forecast for the future. We may give prediction based on the previous data. So regression में जाने से पहले जल्दी से coefficient of correlation में अगर कोई डाउट है तो प्लीज this is the proper time. You may ask any of the question related to R. अगर कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर ले, अगर नहीं है then I will be switching over to the regression. So kindly drop a message. जो भी लोग attend कर रहे हैं, drop a message right now on the chat box whether you are clear with the coefficient of correlation R or not. All of you, एक दो नहीं. I'm having 26 students in front of me. हर किसी का रिप्लाई चाहिए मुझे चैट बॉक्स में. नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए मीटिंग. I said I need all 25 replies on the chat box right now. Good. So once we are clear with the coefficient of correlation, the next is regression. Now, before going for the regression properties or regression coefficients property or regression lines property, हमको पता है दो तरीके की regression line होती है. One of the regression line is x on y, other is y on x. X on y की फॉर्मेट क्या होती है? That is x minus x bar equals to regression coefficient b y minus y bar. Regression line y on x की फॉर्मूला क्या है? That is y minus y bar equals to regression coefficient into x minus x bar. Now both these b's are regression coefficients. अब उसका notation, उसको अलग दिखाने के लिए उसका notation, for regression line x on y we are denoting it as bxy. For regression line y on x we are denoting it as a byx, is it? और इन दोनों की फॉर्मूला है bxy byx. ये क्या है ये भी हम देखेंगे अभी, जल्दी से याद कर ले. But if we are having a data related to x and y, दोनों सीरीज है हमारे पास, और किसी ने पूछा कि भाई go for both the regression lines, give me both the regression lines, तो उस केस में हमको ये दो इक्वेशन के साथ काम करना है. उसमें कितने अननोन है, क्या क्या हमको चाहिए होगा, चलिए देख लेते जल्दी से. x बार चाहिए, y बार चाहिए, चलिए दोनों में है x बार y बार. सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कलेक्ट बोथ. दैट मींस x बार y बार कलेक्ट कर लेंगे. अगर हमारे पास x और y की सारी इंफॉर्मेशन है, x और y वाली इंफॉर्मेशन है, तो x बार y बार कलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, is it? We can do it easily. After having x bar and y bar means both the arithmetic mean, we will go for bxy and byx. Now what is bxy and byx? Both these are the regression coefficients. और regression coefficients की जो फॉर्मूला है ना, याद कीजिए. regression coefficient की फॉर्मूला बहुत ही सिंपल थी. coefficient of correlation into standard deviation divided by standard deviation. Coefficient of correlation into standard deviation divided by standard deviation. Now both the standard deviation are different. If I am dealing with bxy, that means regression coefficient x on y, तो numerator में होगा standard deviation of x series and denominator will have standard deviation of y series. Similarly, if we are interacting with standard regression coefficient byx, तो numerator में standard deviation of y होगा, denominator में x होगा. Is it? So finally we will be in need of both these regression coefficients. और regression coefficient की जो फॉर्मूला है
वो तो सिमिलर ये सेम ही है, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय y, और यहाँ पे है वो r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। पर अब उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो मैटर करता है। इफ आई एम सिंप्लीफाइंग here also we are having 2-3 different possibilities। ये फॉर्मूला 2-3 अलग तरीके से लिखी जा सकती है। कैसे? एक ये फॉर्मूला ये बनेगी स्टैंडर्ड समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय समेशन ऑफ y माइनस वाई बार द स्क्वायर। और यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ऐसी बनेगी समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। देखिए दोनों के न्यूमरेटर सेम है, जो चेंज है वो डिनोमीटर में है। यहाँ पे डिनोमीटर में x है तो डिनोमीटर में x वाला टर्म आएगा, x माइनस एक्स बार द स्क्वायर। This is the simplest formula which we had already dealt with in 1 or 2 examples। ये पर ये यूनिक नहीं है, यही फॉर्मूला ऐसा नहीं है। We can simplify it in some other manner also, like this summation xy minus summation x summation y divide by n all divide by summation of y square minus summation of y divided by whole square then like that। इस तरीके से भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे, क्यों? चलिए मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, सो बेसिक बात ये हुई कि रिग्रेशन लाइंस के लिए ये दो फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, एंड वी मस्ट हैव बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एंड आफ्टर हैविंग बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो भी आपको पता होनी चाहिए। देन यू विल एबल टू मेक then you will able to identify which of the line is regression line x on y on x। अगर वो डिसाइड करना है तो प्रॉपर्टी सही होगा। पर यहाँ पे जो मैंने बोला ये एक ही यूनिक फॉर्मूला नहीं है, बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट की अलग भी है। क्या है चलिए दिखाता हूँ मैं। let me quickly take you towards that particular slide। wait, there it is, yes, here it is। yes, देखिए फॉर्मूला जो अभी हमने लिस्ट आउट की फॉर द bxy and byx, here it is। अब इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस y बार, अगर मैं कुछ उसको अलग से सिंप्लीफाई करूं, देखिए ये सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x स्क्वायर डिवाइड बाय जो मैंने अभी लिखी थी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, ये भी फॉर्मूला हो सकती है। इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे दोनों में अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक से ऑब्जर्व कीजिए, देन दिस इज द सिमिलर फॉर्मूला जिसको मैं कुछ अलग तरीके से सिंप्लीफाई करता हूँ बस। तो ये भी फॉर्मूला इट इज फॉर द रिग्रेशन कोएफिशिएंट byx। दिस इज आल्सो द वैलिड फॉर्मूला फॉर द रिग्रेशन कोएफिशिएंट byx। इज इट? सिमिलरली bxy के लिए भी दो फॉर्मूला हो सकती है, एक ये। अब सिंपल सी वही लॉजिक लगेगा जो अभी हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में किया था। अगर मेरे पास x और y, let me change the color of my pen because yellow will be not visible to you। yes, if I'm having सीरीज फॉर x एंड y, x और y की पूरी सीरीज है मेरे पास डेटा में, तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, चलेगा, पक्का चलेगा। दिस इज आल्सो एप्लीकेबल, दिस इज आल्सो एप्लीकेबल इफ आई एम हैविंग सीरीज ऑफ बोथ द वेरिएबल्स x एज वेल एज y। पर अगर मेरे पास सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेशन ही है, जैसे कि सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा x स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर एज वेल एज सिग्मा xy, इन दैट केस ये नहीं है मेरे पास, और सिर्फ इतने रैंडम ऑब्जर्वेशन, रैंडम कुछ क्वांटिटीज ही दी हुई है, कुछ समीशन ही प्रोवाइड किए हुए, तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगी। देन compulsorily we will be dealing with both these formulas to identify both the regression coefficient, and once we are having both the regression coefficient we can easily go for regression lines, is it? So this is the difference, kind of similarity in coefficient of correlation and regression coefficients example। जब आप एग्जाम में वो हैंडल कर रहे होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी कंफ्यूज फॉर द फॉर्मूला कि कौन सी फॉर्मूला जाएगी और किस तरीके से करेंगे। यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई योर टेबल, उस टेबल में कौन कौन सी कॉलम बनानी है वो भी तो आपको डिसाइड करना होगा, इज इट? सो वो सारी कंफ्यूजन दूर हो सकती है वंस यू आर क्लियर विद द इंफॉर्मेशन व्हिच
which I had just delivered to all of you. चलिए, और इसमें भी अगर मुझे चेंज जैसे कि R जो है, R is coefficient of correlation, as we discussed that R is independent from changing its origin. Similarly, the coefficient of correlations, sorry, the regression coefficient, both the regression coefficient are also independent from change of origin, shifting of origin. यहाँ पे भी मैं अगर origin shift कर रहा हूँ ना तो ये they are good, पर अगर मैं स्केल चेंज कर रहा हूँ then both this will differ. So स्केल चेंज करना यहाँ पे अलाउड नहीं है, पर अगर आप ओरिजिन चेंज कर रहे हो, डेटा का ओरिजिन चेंज कर रहा हूँ, मानी कि अगर आप x और y दोनों में से या तो फिर कोई एक में से कोई एक फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑन बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इट विल रिमेन एज इट इज. और उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगी, ये बनेगी, देखिए यही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है. अगर आप कंपेयर करें इन दोनों को, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम है. देखिए यहाँ पे x और y लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं dx dy लिख रहा हूँ, यहाँ पे x है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे xy है, तो यहाँ पे dx dy. ये dx का मतलब क्या है, मेरा नया x, मेरा नया y. इज इट लाइक दैट, जिसको मैंने चेंज किया, जिसका ओरिजिन मैंने शिफ्ट किया. सो ये सेम फॉर्मूला जाएगी. अगर मैं ओरिजिन भी चेंज कर रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओरिजिन चेंज करने से कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. पर अगर स्केल चेंज कर रहा हूँ तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल नॉट अलाउ मी, उससे रिग्रेशन कोएफिशिएंट डिफर हो जाएगा. पर आर के लिए ऐसी कुछ लिमिटेशन नहीं है. अगर आर की बात हो रही है तो वो ओरिजिन और स्केल दोनों के लिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है. चलिए अब जल्दी से देख लेते. रिग्रेशन कोएफिशिएंट की कुछ 4-5 प्रॉपर्टी थी और 3-4 प्रॉपर्टी रिग्रेशन लाइन की थी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, जियोमेट्रिक मीन, अगर मैं निकालूं जियोमेट्रिक मीन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो वो आर ही होगा. If one of the regression coefficient is greater than 1, then surely other must be less than 1. अब याद कीजिए, इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाया था आपको. Was it? If you are not aware with this property, then you will not able to decide from two equation that which of the equation is regression line is for regression line x on y and which of them is for y on x. अगर दो इक्वेशन मेरे सामने है, उसमें से डिसाइड करना है तो मुझे सेकंड प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए. According to second property, both the regression coefficient may be less than 1. If one of the regression coefficient is greater than 1, then surely other will be less than 1. अगर एक एक से बड़ा है तो दूसरा एक से कम होगा, ये श्योरिटी है. पर अगर एक एक से कम है तो दूसरा एक से बड़ा, ऐसा नहीं बोला है मैंने. देखिए, इट इज नॉट ट्रू. इट्स कन्वर्ज इज नॉट ट्रू. इसको ऐसे नहीं बोल सकते आप कि if one of the regression coefficient is less than 1, then surely other will be greater than 1. ये नहीं हो सकता. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर हर बार श्योरिटी नहीं है. पर एक क्या श्योरिटी है, दैट इज इफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 1. अगर आप पहला रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हो, वो एक से बड़ा आया, सपोज दैट इज 3.5, तो आपके पास श्योरिटी है अब दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक से कम ही आएगा. पर अगर आप फाइंड कर रहे हो एंड फर्स्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज लेस देन 1, फर्स्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज 0.9, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि दूसरा एक से बड़ा होगा या एक से कम. दोनों वैलिड है. दूसरा एक से बड़ा है देन इट इज वैलिड, दूसरा एक से कम है तो भी वैलिड है. सो तो क्या बात क्या हुई कि दोनों एक साथ एक से छोटे हो सकते हैं. बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट may have the value less than 1 together, but if one of them is greater than 1, then surely other will be less than 1. That's it. And the third property says that the arithmetic mean of both the regression coefficient is always greater than equals to r, वो r या r से बड़ा या फिर r जितना होगा. And this is what the regression coefficient are independent from change of its origin, shifting the origin. उससे वो independent है. या मानी कि डेटा का आप origin change कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, regression coefficient सेम ही रहेगा. पर अगर scale change करे then it will create issue. So it is not independent from scale. Take care. और एक बड़ी बात, regression coefficient की साइन सेम होती है always. दोनों एक साथ पॉजिटिव या दोनों एक साथ नेगेटिव, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वन ऑफ देम इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव. इट इज इम्पॉसिबल. इट इज टोटली इम्पॉसिबल. ओके. एंड जो साइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, देन वी विल कंसीडर आर एज पॉजिटिव. तो उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी पॉजिटिव होगा. अगर दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव लेंगे. सो दिस द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट. और रिग्रेशन लाइंस की भी कुछ प्रॉपर्टी थी. हियर इट इज. पहली है both the regression lines
दोनों जो रिग्रेशन लाइन है वो इंटरसेक्ट करे तो वो मीन के पास ही करती है. If I'm having two regression lines like this, I'm drawing it randomly, तो उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो श्योरली उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दैट विल बी मीन ऑफ एक्स सीरीज, एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा, दैट विल बी द मीन ऑफ वाई सीरीज. अब इसका बहुत ही ज्यादा यूज हो सकता है. आपको दो इक्वेशन दिए हुए, सपोज के 2x plus 3y plus 7 equal to 0, and second equation है that is x minus 4y minus 10 equal to 0, and information कुछ ऐसी दी हुई है कि both these are the regression lines. It is not specified which of them is x on y, which of them is y on x. ये नहीं स्पेसिफाई किया, ऊपर बोला है कि ये दो रिग्रेशन लाइन है. अब आपको इन दोनों डेटा के लिए x बार और y बार फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. कैसे? इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. जो x की वैल्यू आएगी उसको हम x बार बोल देंगे, जो y की वैल्यू आएगी उसको हम y बार बोल देंगे. सिंपल है. एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रैमर्स रूल, कोई कुछ भी करिए आप. इन दो इक्वेशन को एक साथ, इसको बोल सकते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. इज इट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है हम अपनी हाई स्कूल से सीख रहे हैं. काफी सारी मेथड्स है. गुजराती में अगर बोले तो लोपनी रीत, आदेशनी रीत, लाइक दैट. इज इट? इफ आई एम इंग्लिश में अगर उसको बोलूँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रैमर्स रूल. इज इट? और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी सीखा हुआ है वो 2-3 मेथड, दैट इज गोस एलिमिनेशन, गोस जॉर्डन, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड. कुछ भी कीजिए पर x और y फाइंड कीजिए. जो x आ रहा है वो x बार, जो y आ रहा है y बार. दैट मीन्स मुझे इजिली उन दोनों के मीन मिल जाएंगे, अरिथमेटिक मीन. इज इट? So यहाँ पे first property use हो सकती है. Second it is literally same, says about the same sign. If both the regression coefficient is positive, then so if r is 0, so 0 into anything it will be 0. That means bxy will be surely 0. Is it ना? And if r is 0 तो byx भी 0 होगा, क्योंकि byx की फॉर्मूला में भी r न्यूमरेटर में आ रहा है, sigma y divided by sigma x. Just give me 1 minute. Good. So are we comfortable? Yes. If r is 0, then both the regression coefficient will be also 0. And the last one, this is also important. अगर r की वैल्यू प्लस और माइनस 1 है, जो कि आइडियल केस है, जो कि बहुत कम दिखता है कि r इज पॉजिटिव परफेक्ट 1. r की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है, उसका मतलब क्या है कि बोथ द वेरिएबल x एंड y इज हैविंग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. उसमें जो चेंज हो रहा है उसका रेशियो भी सेम है. आइडियल केस है, थोड़ा बहुत कम आता है. पर इफ r इज +1 और r इज -1, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन क्या बता रही है? प्लस और माइनस साइन जस्ट बता रही है कि बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन. +1 आ रहा है, दैट मींस बोथ द वेरिएबल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. एक में इंक्रीमेंट, दूसरे में भी इंक्रीमेंट. अगर माइनस आ रहा है तो क्या मतलब है कि बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो हम क्या अभी बात करें? द रिग्रेशन लाइंस बिकम आइडेंटिकल इफ r इज +or -1. कोई डेटा के लिए r की वैल्यू या तो +1 है या तो -1 है. इन बोथ दैट केसेस रिग्रेशन लाइन विल बी डिटो आइडेंटिकल. आप x on y फाइंड कीजिए या y on x फाइंड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों रिग्रेशन लाइन सेम ही होगी. सो ये भी एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है. तो मैं पूछ सकता हूँ आपको कि कब बोल सकते हैं आप बोथ द रिग्रेशन लाइंस विल बी आइडेंटिकल. इन विच ऑफ द केस? इफ r इज +1, इफ r इज -1, r इक्वल्स टू 0 और r इक्वल्स टू 0.5. और एक ऑप्शन दे दूं, r इक्वल टू +or -1. इज इट? सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, याद रखना ये. एंड वन मोर थिंग, that x equals to x by जान लीजिए उसको. एक ये, if r equals to 0, if r की वैल्यू 0 आ रही है, if r is equals to 0, then in that case, as I said, that both the regression coefficients will be 0, as well as both the regression lines will be perpendicular to each other. दोनों regression lines है ना, वो एक दूसरे को perpendicular होगी, like this. अब इस केस में r की वैल्यू 0 होगी, इस केस में r की वैल्यू 0 होगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी. देखिए,
r plus or minus 1, then both the regression lines will be identical. If r equals to 0, then both the regression lines will be perpendicular to each other. Okay. After that मैंने कुछ examples लिए थे. ये example हमने बात कर ली है lecture में, पर let me take you कुछ और. Yes, देखिए ये example देखिए एक बार. Example 12. ये शायद discuss नहीं हुआ है, पर देखिए एक बार. The following data regarding to the height and weight of the 100 college students. मेरे सामने 100 बच्चे कॉलेज के 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स, और आई हैव कलेक्टेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हाइट एंड वेट. वेट को मैं x बोल रहा हूँ, हाइट को मैं y बोल रहा हूँ. अब क्वेश्चन क्या है मेरा? इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर डेटा, दो तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ. देखिए, इफ आई एम कलेक्टिंग अ डेटा ऑफ हाइट एंड वेट फॉर 100 स्टूडेंट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ. वो डेटा पूरा मैं इस तरीके से टेबलाइज कर सकता हूँ. कैसे देखिए, एक मिनट. यस, वेट उसको मैं x बोल रहा हूँ, हाइट उसको मैं y बोल रहा हूँ. ये पूरा जो डेटा है ना 100 बच्चों का, मैं कुछ कलेक्ट कर रहा हूँ. सपोज कि फर्स्ट स्टूडेंट इज मोहम्मद, तो उसकी कुछ सॉरी क्या हुआ? लेट मी पिक माय पेन वंस अगेन. यस, सपोज द फर्स्ट स्टूडेंट इज मोहम्मद, तो उसके लिए जो भी डेटा है, उसका जो भी वेट है, सपोज कि मोहम्मद इज ऑफ 55 kg और उसकी हाइट है दैट इज 170 सेंटीमीटर. सेकेंड वन है कुछ भी, सपोज कि मानसी है, उसकी हाइट, उसका वेट ले लेते चलिए हम 49 और वे हाइट इज अबाउट 168. दिस इज जस्ट रैंडम नंबर्स. ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग सच ऑब्जर्वेशंस, ये नहीं दिया हुआ, देखिए कहीं पे दिया हुआ, वो टेबल दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो उसने क्या दिया? ऐसे 100 स्टूडेंट है मेरे पास, 100 बच्चे, उस सभी के लिए सारा डेटा नहीं है मेरे पास. बट व्हाट आई एम हैविंग सिग्मा एक्स. उन सभी का टोटल क्या है? सिग्मा वाई. सारे बच्चों के वेट का टोटल क्या है? इट इज 15,000. उसका स्क्वायर निकालो तो उसका समेशन क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर. दैट इज समथिंग अ बिग नंबर, वन ऑफ द बिग नंबर. वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि क्या है, छोड़ दीजिए उसको. सिग्मा वाई, सभी बच्चों की हाइट का टोटल क्या है? दैट इज 6800. उसका स्क्वायर निकालो, उसका टोटल क्या है? उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल क्या है? तो देखिए, कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डेटा? Earlier, I was giving you the series of x and y. Now I am not giving you the series related to x and y. I am not giving you the actual observation. I am just giving you its total. कि भाई x वाला टोटल ये है, y वाला टोटल ये है, उसका स्क्वायर निकालो, उसका टोटल ये होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, उसका टोटल ये होगा. Now, अगर मैं यहाँ पे पूछूं, अगर मैं यहाँ पे in this situation, if my question is like that, what should be the value of r, coefficient of correlation? ये यहाँ पे क्वेश्चन तो रिग्रेशन के लिए है, पर अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक और ऐड कर रहा हूँ कि I need to identify the coefficient of correlation for this particular situation, तो आप बताइए, आपके पास 3 फॉर्मूला थी r के लिए, is it? आप कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? चलिए, I am waiting for your answer. Which of the formula for r will be applicable in this situation? Waiting for your answer. Eagerly waiting for your answer. ना बोला ना, किसी ना बोला तो आज तांडव होगा. Am I audible to all of you? Let me know. Am I audible to all of you? Good. क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, जो हम बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? सभी के समझ में आ रहा है? भारती, यशांक, दोनों के तो समझ में आ रहा है. मोहम्मद सर एक बार रिपीट करो क्वेश्चन सर. कौन बोला? तो यशांक क्या कर रहा था बेटा? तू सो रहा था बेटा? नहीं सर, मैं वो क्वेश्चन था ना, तो देख रहा था कौन सा फॉर्मूला लग सकता. हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? सर वो वाला दूसरा आ है, समेशन तो एक्स वाई वही तो पूछा मैंने, माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन एक्स वाई माइनस एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय n डिवाइड बाय जो भी है अंडर रूट ऑफ समेशन x द स्क्वायर माइनस समेशन x द होल स्क्वायर डिवाइड बाय n द सिमिलर टर्म विद द y. इज इट? ये फॉर्मूला लगेगा? तेरी बात सही है, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. पर मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, यशांक ये बता, क्या मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? x माइनस एक्स बार y माइनस y बार डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस x बार. नहीं, ये नहीं लग सकता.
क्यों नहीं लग सकता, बता मुझे। सर इंडिविजुअल वैल्यू एक्स और वाई की हमें नहीं पता है। यस, there you are, यही तो मैं पूछ रहा था कब से। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी नीड टू डिसाइड अ फॉर्मूला। अब इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर, पर ये देने की बजाय उसने मुझे 100 बच्चों के सारे हाइट और वेट दे दिए होते, सपोज शायद उसने सभी प्रोवाइड कर दिए, मान लीजिए चल बड़ा नंबर है 100 लोग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, पर अगर मेरे पास है तो मैं इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, हाँ ना, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, पर सिर्फ ये समेशन वाला इंफॉर्मेशन ही है तो दिस फॉर्मूला विल नॉट एप्लीकेबल, तो मुझे इसी से करना होगा। अब इसी क्वेश्चन में मैंने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं पूछा है, पूछा क्या है देख, ऑब्जर्व व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट, वो भी है सॉरी, उसके अलावा क्या है, ऑल्सो इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ हाइट एंड वेट, दैट मीन्स दोनों रिग्रेशन लाइन्स, regression line of height on weight and weight on height. That means I am looking for both the regression line x on y and y on x. अब मुझे दोनों रिग्रेशन लाइन चाहिए, मानी कि मुझे दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी चाहिए होंगे, तभी तो मैं दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड कर पाऊंगा, इज इट ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन जो होगा ना, उसके लिए हम, अरे यार ये इरेज क्यों नहीं हो रहा, मैंने सेव कर दिया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई नीड टू डिस्कार्ड एंड वंस अगेन लेट मी स्टार्ट। यस, व्हाट शुड बी द वे, व्हाट शुड बी द पाथ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पहले क्या फाइंड करेंगे फिर क्या फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 चीजें पूछी हुई है, एक तो आर फाइंड करना है, फिर दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, एक रिग्रेशन लाइन होगी x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार, दूसरी रिग्रेशन लाइन होगी y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। सो इतना पूछा हुआ है। अब ये 3 इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इसके लिए आर, इसके लिए इन दोनों के लिए क्वेश्चन 2 सॉरी सेकेंड और थर्ड के लिए मुझे चाहिए बी एक्स वाई बी वाई एक्स, तो मुझे पहले तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स चाहिए, साथ में एक्स बार वाई बार भी चाहिए, इज इट। तो इतनी इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी चाहिए, पहले एक्स बार क्या फाइंड करके आओ, वाई बार क्या फाइंड करके आओ, फिर बी एक्स वाई फाइंड कीजिए, फिर बी एक्स वाई बी वाई एक्स फाइंड कीजिए। और अगर ये दो है मेरे पास, बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आई एम हैविंग, तो आर तो बहुत आसानी से निकलेगा, आर विल बी नथिंग बट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, इज इट, वो तो प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। तो अगर मेरे पास दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट है तो आर तो आसानी से निकलेगा, उसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला करनी नहीं होगी। सो दिस शुड बी द वे, पहले मुझे एक्स बार करना है, फिर वाई बार करना है, फिर बी एक्स वाई बी वाई एक्स और आर। अब इन सारों के लिए ये एक्स बार वाई बार कोई बड़ी बात नहीं, एक्स बार की फॉर्मूला क्या होती है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, इज इट। तो सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा एक्स इज 15,000, तो यहाँ पे लिख दो 15,000 और एन मींस नंबर ऑफ डेटा वी आर हैविंग, मुझे पता है 100 लोग की इंफॉर्मेशन है ये, सो इट इज डिवाइडेड बाय 100, सो जो आंसर आएगा दैट विल बी 150। सो एक्स बार की वैल्यू 150 होगी। सो सिमिलरली मैं आई कैन गो फॉर वाई बार, सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन करके मुझे वाई बार भी मिलेगा। पर इन दोनों के लिए अब मैं फॉर्मूला फिक्स करूंगा कि भाई बी एक्स वाई कैसे करूं, बी वाई एक्स कैसे करूं, दो फॉर्मूला है अलग, ठीक अलग से, उसमें से कौन से अप्लाई करूं। क्या वो समेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूं, नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास सीरीज नहीं है। तो कंपल्सरीली यहाँ पे मुझे फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट मुझे वही फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी, कौन सी, वो सेकंड वाली, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन, और नीचे पीछे y है, मानी कि नीचे y वाला टर्म आएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय सॉरी सिग्मा वाई द होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इसी फॉर्मूला से होगा जो मुझे मिलेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट x और y। और yx के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में सिर्फ आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर डिवाइड बाय। अब इसके लिए जो भी रॉ मटेरियल है सिग्मा एक्स स्क्वायर, वी आर इन नीड ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स एंड आफ्टर सिग्मा एक्स वाई, वो सभी दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो लेट मी शो द सॉल्यूशन, किस तरीके से करना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि बस आपको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि कौन से फॉर्मूला से क्या होगा। देखिए एन की वैल्यू 100 सॉरी दी हुई है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स पहले मैं कर लूँ,
उससे पहले दोनों अरिथमेटिक मीन अगर ये पहले फाइंड कीजिए बाद में फाइंड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस फॉर्मूला में जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए आपको, देखिए सिग्मा एक्स वाई चाहिए, हियर वी आर हैविंग इन द क्वेश्चन, सिग्मा एक्स चाहिए है हमारे पास, सिग्मा वाई चाहिए है हमारे पास, डेटा में है, एन की वैल्यू है 100, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए वो भी दिया हुआ है, सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए होगा वो भी दिया हुआ है। सो सारे इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो मुझे अभी टेबल की कोई जरूरत नहीं होगी, ये सिंप्लीफिकेशन कैलकुलस से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। एंड वंस वी आर हैविंग बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट वी मे गो फॉर r. r is nothing but the geometric mean of both the regression coefficient. That's it. So this should be the way. And once we are having all the data bxy, byx, x bar, y bar है मेरे पास, तो ये जो फॉर्मूला है रिग्रेशन लाइन की उसमें सारी वैल्यू रिप्लेस करनी है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर y on x, रिग्रेशन लाइन y on x, तो उसकी फॉर्मेट ऐसी रहेगी, उसमें से y को सब्जेक्ट बनाना है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस कांस्टेंट। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर रिग्रेशन लाइन x on y, तो उसकी फाइनल फॉर्मेट ऐसी होगी कुछ जिसमें x सब्जेक्ट बनेगा, लाइक दिस, x इक्वल्स टू 3.6y माइनस समथिंग, दैट मींस x equals to function of y plus or minus any of the constant. Is it? So we need to take care about all these things, how to choose our formula, how to deal according to the situation. चलिए बताइए, समझ में आया जो भी हमने बात की अभी? Are we good with this? Am I meaningful properly? अब बताइए, चलिए रिग्रेशन में और कोई डाउट है? कोरिलेशन रिग्रेशन में इसके अलावा और कुछ डाउट है? और एक टाइप क्या हो सकती है, और एक वैरायटी क्या हो सकती है, लाइक दिस, मैं आपको सारा डेटा दे दूं कि भाई फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और तो क्वेश्चन इस तरीके से रख दूं, फाइंड बोथ द रिग्रेशन लाइंस यूजिंग दिस डेटा। अब मेरे पास x और y की सीरीज है, इफ यू गोना कंपेयर एग्जांपल 13 विद 12, इस 13 को एग्जांपल 12 से आप कंपेयर कीजिए। एग्जांपल 12 में मैंने सीरीज नहीं दी हुई है, इन दैट केस आई वो स्टिक अप टू दिस फॉर्मूला कि यही फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। अब जब मैं सीरीज दे रहा हूं आपको, एक्चुअल डेटा दे रहा हूं, तो आपके पास पूरी इंडिपेंडेंस है कि आप कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए। वो समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है, या तो फिर वही पुरानी फॉर्मूला जो 12 में हमने की है, दोनों एप्लीकेबल होगी। अब देखिए ये पुरानी फॉर्मूला से ही किया हुआ है। अब यहाँ पे पुरानी फॉर्मूला ना भी करूं मैं, और मैं bxy के लिए, bxy और byx के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द स्क्वायर, अगर इससे करना चाहूं तो भी हो सकता है। यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपके लिए, यू कैन चूज योर फॉर्मूला। बट अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो ये टेबल नहीं बनेगा, टेबल कुछ अलग बनेगा। एक्स वाई यही होंगे, फिर we will be going for x minus x bar, then we will be going for its square, x minus x bar the square, उसके बाद हम करेंगे y minus y bar, फिर उसका स्क्वायर करेंगे y minus y bar the square, और then उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बिकॉज इतनी सारी डेटा हमको चाहिए होगी। बट अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आपको 3 ही नई कॉलम बनानी पड़ेगी। सो दैट विल बी योर कॉल, आप डिसाइड करेंगे कि कौन से फॉर्मूला से जाना है। बट यहाँ पे दोनों फॉर्मूला अप्लाई हो सकती है, पर वहां पे सिर्फ एक ही हो रही है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। Let me go for one of the important question. Wait, example 15 पे जाने दीजिए। Yes, not this one, not this one, that is included in the exercise. Yes, चलिए पहले एग्जाम्पल 14 जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि इसी के जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन है सेटेड इन द प्रैक्टिस सेशन ऑफ द रिग्रेशन जो अभी हम स्टार्ट करेंगे। पर एक बार ये देख लीजिए, द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन y सीरीज। तो y सीरीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल पर यूनिट वॉल्यूम इन कल्चर एट डिफरेंट आवर्स। सो x जो है वो टाइम है जो कि आवर्स में दिया हुआ है। मान लीजिए कि 0 आवर्स पे बैक्टीरियल सेल्स 43 थे, 1 घंटे के बाद दैट बैक्टीरियल सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 43 टू 46, 2 घंटे के बाद वो हो गए 82, इस तरीके से 9th आवर के बाद it is 272. Is it? This is a kind of data we are having where x is time, its unit is in hour,
and y is number of bacterial cells. Okay, now what we are supposed to do with this data, we are supposed to predict some of the things. Before the prediction, they are asking that fit the line of regression, lines नहीं आती, यहाँ पे line आएगी, fit line of regression x on y and y on x. yes, यहाँ पे lines ही आएगी, sorry, दोनों regression line पूछी हुई, x on y भी पूछा है, y on x भी पूछा है. So regression line x on y दीजिए, y on x दीजिए, दोनों regression lines find कीजिए, and then after this is very very important, observe. अब दो regression line कैसे करनी है वो हमको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है. But now what should be the process for this question? Also estimate the number of bacterial cells after 15 hours. Also estimate the number of bacterial cells after 15 hours. मानी कि अगर x की वैल्यू, x is time interval, x जब 15 घंटे हो ना, टाइम जब 15 घंटे हो, at that time we are supposed to predict the number of bacterial cells. कि 15 घंटे के बाद bacterial cells कितने होंगे. So here they are looking for we will go for estimate in y. Actually we will be going for prediction in y. y को predict करेंगे, y को predict करेंगे. अब y को predict कैसे कर सकते हैं, कब हम y को predict कर सकते हैं? y को अगर predict करना है तो we are in need of regression line y on x. ये भी मैंने बोल के रखा है आपको, काफी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है. If we wish to predict or if we wish to estimate the value of y, अगर y को predict करना है, y को estimate करना है तो regression line y on x चाहिए. और अगर x को predict करना है तो regression line x on y चाहिए. तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे number of bacterial cells पूछा हुआ है, estimate the number of bacterial cells. number of bacterial cells जो है वो हम y से represent कर रहे हैं. So I need to predict y based on x. That means x दिया हुआ है, y find करना है, तो we will be in need of regression line y on x. चलिए ये प्रोसेस सिमिलर ही होगी, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है डेटा. I had used the similar formula, वही फॉर्मूला यूज करके सारा समीशन निकाला हुआ है, वो बहुत ही आसान है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. x बार y बार निकालना बहुत ही आसान है. Once I am having all that, तो मैं दो रिग्रेशन लाइन भी लिख सकता हूँ. देखिए, both these are the regression line. Now observe the format of both the regression lines. आप ये ऑब्जर्व कीजिए, खास आपको एग्जाम में ये फॉलो करना है. The equation of line of regression. Sorry. Let me erase that. Where my is that? Yes. Observe that. Regression line y on x. उसका फॉर्मेट कैसा है देखिए, बहुत ध्यान से देखिए. Regression line y on x का फॉर्मेट क्या है? y सब्जेक्ट है, something into x plus constant. Regression line x on y का फॉर्मेट मैंने कैसे लिखा हुआ है, मार्क कीजिए. x equals to function of y plus or minus one of the constant. So ये ध्यान रखना है. Regression line y on x है तो उसका फॉर्मेट y equal to something होता है. Regression line x on y है तो उसका फॉर्मेट x equal to something होता है. अब इन दोनों में x और y है, यहाँ पे भी x है, y है, यहाँ पे भी x है, y. मुझे क्या करना है? आई एम सपोज टू प्रेडिक्ट y. अगर x 15 है तो y क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन. तो एक कंफ्यूजन और हो सकता है इस स्टेज पे कि सर यहाँ पे x रिप्लेस कर दीजिए, y मिल जाएगा. सर यहाँ पे x रिप्लेस करने से भी तो y मिलेगा. हाँ, पर वी कैन नॉट चूज एनी ऑफ देम. फॉर दैट आपको पता होना चाहिए कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं y, वी आर गोइंग टू एस्टिमेट y, तो हमको रिग्रेशन लाइन y on x का यूज करना है. इसी का यूज करके आपको y प्रेडिक्ट करना है. अगर y के लिए प्रेडिक्शन चाहिए तो यही लाइन, अगर x के लिए प्रेडिक्शन चाहिए तो यही लाइन. इज इट? सो दिस इज द मेजर कंफ्यूजन कि कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर दोनों में x और y है, कोई x रिप्लेस करने से दूसरा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, पर सूटेबल कौन सा है, अप्रोप्रिएट कौन सा है, दैट वी नीड टू डिसाइड. सो अगर यहाँ पे मुझे x 15 अगर है और y प्रेडिक्ट करना है, देन आई विल यूज ओनली दिस रिग्रेशन लाइन y on x. इसी का यूज करूंगा. यहाँ पे x की जगह पे 15 रिप्लेस करूंगा, वो कैलकुलेशन करूंगा, जो भी आ रहा है दैट इज 432 point something. So we will approximate it up to 432. Approximately 432 bacterial cells will be there after 15 hours. Are we good? आई बात समझ में? हाँ या ना? आई बात समझ में?
रिप्लाई कीजिए भाइयों और बहनों। So hopefully we guys are good. देखिए, I tried to cover all the different types of data for the regression. Now, let me give you a practice session. Let's go for practice session कि भाई इसकी practice देखते हैं आप लोग किस तरीके से कर पाते हैं. Let me share my that particular screen. Let me alter this tab. Where is the PDF? Yes, here is the PDF. I had shared the same exercise in your group yesterday. यही exercise मैंने कल आपके साथ ग्रुप में शेयर की हुई है, कल 12 बजे के आसपास. So if you check your WhatsApp, both A and C batch, देखो तो एक बार चेक करो तो मैंने की है ना. मानसी तू एक बैच में चेक कर दे, सी बैच में से कोई एक चेक करके दिखाओ जल्दी से. And I shared that in both the WhatsApp group. मैंने की तो थी, मैं भी देख लेता हूँ एक बार. यस सर है ना. हाँ सर. यस, ये और सी दोनों में है. यस, हियर इट इज. मैं उसको एक बार फिर से पिंग भी कर दूं. दिस वन. सो बैच ए में मैंने वो पिंग किया, बैच सी में भी वो पिंग कर दूं. दिस वन. This is what the exercise 3b relates. It is for the regression coefficient. Now, in this question, in this exercise, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने. देखिए 1 2 3 4 5 6 छोटे से ही है. Hopefully my screen is visible. Is it ना? स्क्रीन पे वो PDF दिखाई दे रही है ना सभी को? यस सर. Good. अब देखिए what is the first question? If two regression lines are this and this, which of this is regression line x1y, which of them is y on x, and also find rxy. जब मैं rxy लिख रहा हूँ rxy, तो उसका मतलब सिंपली r ये, r माने की कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. अगर कोई रेफरेंस बुक में ऐसे लिखा जाए rxy तो कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज अ वैलिड नोटेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. जो हम सिंपली r लिखते हैं उसको rxy भी लिख सकते हैं. सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन x दिया हुआ है. इज इट? सो थोड़ा दिमाग लगा कि ये करेंगे. मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस है तो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा इक्वेशन x ऑन y है, कौन सा y ऑन x है. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दैट. सेकंड बहुत इजी रहेगा. फॉर द बाइवेरिएट डेटा मैंने मीन दे के रखा है दोनों सीरीज का, एंड आई एम लुकिंग फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y एंड y ऑन x. नहीं, वो भी दिए के रखा है. देखिए द रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x इज 4 एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y इज 1/9. दोनों मीन दे के रखे, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट दे के रखे, माने कि सारा डेटा मैंने दे दिया है. एंड देन आई एम आस्किंग फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट है तो उसका जियोमेट्रिक मीन लेके r मिल जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन x. अब स्टैंडर्ड डेविएशन x के लिए थोड़ा दिमाग लगाना. कोई भी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बेसिक जो फॉर्मूला है, माने कि bxy की फॉर्मूला क्या रहती है, r इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय y. तो उसमें 4 अननोन टर्म है, उसमें से 3 दे के रखे, एक फाइंड करना है तो हो जाएगा. एंड राइट डाउन बोथ द रिग्रेशन लाइंस. रिग्रेशन लाइन सारा डेटा तो है, सिर्फ रिग्रेशन लाइन लिखना है. फिर ये एक थर्ड वाला क्वेश्चन है, वो भी अच्छा है. फोर्थ फिफ्थ सिक्स उसमें तो सिर्फ डेटा दे के रखा है, आपको रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी है. ठीक है. सो दिस इज द एक्सरसाइज. और अभी हम करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. 3 ही करना है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 ही मिनट है तो 3 हो सकेंगे शायद. 3 कर लेंगे हम. गुड. फर्स्ट 3. So this 3 we are supposed to do right now in this practice session. Now let me stop the recording because इसकी recording नहीं चाहिए हमको. It's okay.